Hello student, in this lecture we want to study the types of a reagent, attacking reagent. In last video we have been studied about the bond fission, breaking of a covalent bond. तो अपन ने देखा during the formation of a product the number of a covalent bonds of the reactant gets broken and then the reagent attack on it and formation of a new compound that is called a product. तो पहला पार्ट देखा था अपने बॉन्ड फिशन. अब बॉन्ड फिशन होने के बाद में नाउ द सेकंड पॉइंट इन रिएक्शन मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड द रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट. तो अटैकिंग रिएजेंट दैट इज these are the electron deficient or electron rich या फिर neutral species or neutral species which attacks on the substrate, attack on a substrate in the chemical reaction, in a chemical reaction called reagent. इसको क्या बोलेंगे अपन? reagent. इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच या फिर न्यूट्रल स्पेसीज that attack on the reactant molecule, clear, that are called a reagent in a chemical reaction. Clear? तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट या फिर इलेक्ट्रॉन रिच या फिर न्यूट्रल स्पेसीज that attack on a substrate in a chemical reaction that is called a reagent. Now आप देखेंगे अपन types of reagent. तो generally there are two types. One is called electron deficient and another one is called electron rich. So types of this. So here types. So there are two types of reagent. One is called electrophilic reagent and second one is called a nucleophilic reagent. Electrophilic reagent and nucleophilic reagent. या फिर simply we can say that is one is called electrophiles. One is called electrophiles. What is meant by electrophiles and nucleophiles? तो these commonly called electrophiles. इसको क्या बोल सकते हैं अपन? Electrophiles. तो इसको बोलेंगे अपन nucleophiles. अब what is meant by electrophiles और what is meant by nucleophiles? देखो तो यहाँ पर इलेक्ट्रो, जो वर्ड इलेक्ट्रो, दिस इलेक्ट्रो दैट इज फॉर ए इलेक्ट्रॉन and philic का मतलब loving. The electron loving reagents are called electrophile. Electron loving reagents are called electrophile. अब electron loving का मतलब क्या कि that is they attack on electron loving, यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां पर वो अटैक करेंगे. That is they attack on electron रिच सेंटर. जब इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक करते हैं तो उनके खुद के पास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कम होंगे. दैट इज दीज आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट. These are electron deficient. That is they contain an atom which is electron deficient are called electrophiles. That is what happen? They have electron deficient. That is they have a tendency to gain the electron. So these are electron pair acceptors. These are electron pair acceptors are called electrophilic reagent. और अपन ने देखा ionic equilibrium में according to the Lewis theory, a substance which has a tendency to gain the electron pair are called Lewis acid. So they are Lewis acid. समझ में आ गया? तो what is mean by electrophilic reagent? That is the electron loving reagents are called electrophilic. इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन और फिलिक का मतलब लविंग. इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब दैट इज दे अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर. दे अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर. दैट इज दे कंटेन एन एटम व्हिच इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट. तो क्या होगा? दे अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर. जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है
वहां पर वो अटैक करेंगे। दैट इज दे हैव ए टेंडेंसी टू इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। जब इलेक्ट्रॉन वीक सेंटर पर अटैक करेंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन वो क्या करेंगे, गेन करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द लेविस थ्योरी दीज आर कॉल्ड लेविस एसिड। समझ में आ गया? द नंबर ऑफ एग्जांपल्स, अब इसमें एग्जांपल कौन से आएंगे? दैट इज अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो जनरली दे एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। तो ऑल पॉजिटिवली चार्ज, ऑल द कैटायंस आर इलेक्ट्रोफाइल्स, ऑल द कैटायंस आर इलेक्ट्रोफाइल्स। ख्याल में रखने का, दैट इज H पॉजिटिव, R पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, all the positively charged are electrophile except exception ख्याल में रखने का, that is alkali metal like Na positive, K positive, NH4 positive, because what is the reason? Because they do not contain empty octet. इनका जो octet है empty octet नहीं है, because they do not have एम्प्टी ऑक्टेट। क्योंकि जैसा अपन ने देखा सोडियम से अगर एक इलेक्ट्रॉन चलेगा, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा 281, तो इट एक्वायर यानी पॉजिटिव चार्ज, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा 28। तो देयर इज नो एम्प्टी ऑर्बिटल। एम्प्टी ऑक्टेट, एम्प्टी ऑर्बिटल न होने की वजह से दे डू नॉट हैव ए टेंडेंसी टू गेन्स द इलेक्ट्रॉन, लेकिन बाकी बचे हुए हैं ऑल द कैटायंस आर इलेक्ट्रोफाइल्स। ख्याल में रखने का, ऑल द कैटायंस आर इलेक्ट्रोफाइल्स। क्लियर? ये हो गया एक्सेप्शन। उसके बाद में सेकंड, दैट इज द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में विच आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, विच आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का मतलब दैट इज they contain less than 8 electron in their valence shell. Electron deficient का मतलब that is the less than 8 electrons in their valence shell. Less than 8 electron in their valence shell, such are called electron deficient molecule. जैसा for example LCl3 लेंगे अपन, BeF2 लेंगे या फिर BCl3। जैसे LCl3 अगर लेंगे तो क्या आ जाएगा स्ट्रक्चर LCl3 का, लाइक दैट। तो दिस एल्यूमिनियम कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल? 6 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड यानी 6 इलेक्ट्रॉन। सो इट हैज ए टेंडेंसी टू गेन अगेन 2 इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, उनको क्या बोलेंगे अपन? इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आ गया? तो सम ऑफ द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, the number of neutral molecules which are electron deficient, that is the central atom contain less than 8 electron in their valence shell, they are called electrophiles। या फिर दूसरा आ जाए न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल which are contain vacant d orbital, neutral molecule with a vacant d orbitals, neutral molecule with a vacant d orbitals, they are also acts as a electrophile। जैसा फॉर एग्जांपल अगर आप PCl5 लेते हैं तो फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 285। क्लियर? तो इसका यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई 3s2, क्लियर, और 3p3, क्लियर। बट इन ऑर्डर टू फॉर्मेशन ऑफ PCl5 इज फॉर्म हाउ मेनी? दैट इज द 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स। कितने? 5 कोवेलेंट बॉन्ड। अगर वो 5 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है तो इट में हाउ मेनी? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो व्हाट हैपन हियर? तो इट अंडरगो एक्साइटेड स्टेट, तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 3s गेट्स प्रमोटेड टू दैट इज द 3d। कहां चले जाएगा? 3d में। तो द इलेक्ट्रॉन प्रमोटेड टू 3d, तो नाउ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3s1, 3p3 और 3d1। Now there are 5 unpaired electron, तो it has a vacant d orbital। यहाँ पर d orbital क्या हो गया? वैकेंट, क्योंकि d की कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन की है, इसमें ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, तो और इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। समझ में आ गया? या फिर दैट इज द सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी आ सकता है, दैट इज आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड आल्सो बिलोंग्स टू दिस क्लास। समझ में आ गया?
तो ये हो गया अबाउट द इलेक्ट्रोफाइल्स. दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोफाइल्स या फिर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट? a species which contain an atom which is electron deficient and can attack on electron rich center. These are called electrophiles. तो ख्याल में रखने का, all the cations except the sodium potassium all are क्या आ जाएगा फिर? That is electrophiles. They have a tendency to gain the electron pair. और उसके बाद में न्यूट्रल मॉलिक्यूल अभी देखा अपन ने. These are electron deficient, that is central atom contain less than 8 इलेक्ट्रॉन. अगर यहाँ पर बेरियम लेते हैं अपन, तो बेरियम के 2 ही बॉन्ड फॉर्म किए, यानी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन्स. अगेन इट हैज अ टेंडेंसी टू गेन द 4 इलेक्ट्रॉन्स. या फिर दोज न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विद वैकेंट डी ऑर्बिटल, जिनका सेंट्रल एटम का डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है, या फिर वैकेंट या फिर इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल अगर है, तो दे एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल. क्लियर? तो ये एक पॉइंट ख्याल में रखने का. अब उसके बाद में नाउ द न्यूक्लियोफाइल्स. अब व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट? न्यूक्लियोफिलिक कॉमनली कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स. अब यहाँ पर न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस और फिलिक का मतलब लविंग. दैट इज the nucleus loving reagents are called nucleophile. nucleus loving reagent को क्या बोलेंगे अपन? the nucleophile. अब इतना पता है अपने को, न्यूक्लियस यानी एक्वायर विथ चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज. तो न्यूक्लियस लविंग रिएजेंट, न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव चार्ज, तो वो कहाँ अटैक करेंगे? पॉजिटिव चार्ज पर. दे अटैक ऑन पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन के लैंग्वेज में अगर बोला है तो क्या आ जाएगा फिर? दैट इज दीज आर दे अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर. अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पर कौन अटैक करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए वो अटैक करेगा. समझ में आ गया? तो इसका मतलब दीज आर, दैट इज द स्पेसीज कंटेन एन एटम विच इज इलेक्ट्रॉन रिच. They contain excess of a pair of electrons. So they have a tendency, तो उनकी टेंडेंसी क्या रहेंगी फिर? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की रहेंगी. They have a tendency to donate the electron pair. और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उनको लेविस ने क्या बोला है? These are called लेविस bases and they attack on electron deficient center. जहां पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे वहां पर वो अटैक करेंगे. समझ में आ गया? तो वेरी सिंपल डेफिनेशन. न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, a substance or a species which contain an atom which is electron rich and can attack on electron deficient center. So they have a tendency to donate the electron, acts as a Lewis bases. These are called nucleophilic reagent. समझ में आ गया? अब एग्जाम्पल्स, तो जैसा यहाँ पर लिया अपन ने, ऑल द कैटायंस आर इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पर ऑल द एनायंस आर न्यूक्लियोफाइल. ख्याल में रखने का, N का मतलब निगेटिवली चार्ज. ऑल द निगेटिवली चार्ज आयंस आर न्यूक्लियोफाइल. क्लियर? तो नंबर ऑफ, जैसा H निगेटिव आ सकता है, R निगेटिव आ सकता है, Cl निगेटिव आ सकता है. यहाँ ख्याल में रखने का, Cl पॉजिटिव भी आ सकता है, Cl निगेटिव भी आ सकता है. कैसे? देखो, अगर समझो Cl में अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग अगर होता है तो H अक्वायर पॉजिटिव चार्ज, Cl अक्वायर निगेटिव चार्ज. एट दैट टाइम इट इज एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल. लेकिन अगर समझो हाइपोक्लोरस एसिड लेते हैं HOCl, तो यहाँ पर ब्रेकिंग ऑफ ए बॉन्ड, अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग, तो OH अक्वायर निगेटिव चार्ज, Cl अक्वायर पॉजिटिव चार्ज. क्लियर? तो ये क्लोराइड आयन अगर है तो न्यूक्लियोफाइल. अगर क्लोरोनियम आयन अगर है तो दैट इज इलेक्ट्रोफाइल. वैसे हाइड्रोजन का भी HCl में अगर ब्रेकिंग होता है तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन आयन, या फिर हाइड्रोनियम आयन भी बोल सकते हैं इसको. H3O पॉजिटिव लिखते जनरली. क्लियर?
उसके बाद में ये H पॉजिटिव आयन हो गया, या फिर अगर समझो मेटल हाइड्राइड के साथ में अगर अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग होता है तो यानी एक्वायर पॉजिटिव चार्ज यानी एक्वायर निगेटिव आयन, हाइड्राइड आयन। क्लियर? तो हाइड्रोजन आयन अगर है तो ये हो गया H पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रोफाइल, और हाइड्राइड आयन है तो न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? तो ये हो गया अबाउट द नंबर ऑफ एग्जांपल्स। ऑल द नेगेटिवली चार्ज, ऑल द आयन्स आर न्यूक्लियोफाइल। अब दूसरा एग्जांपल लेंगे अपन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कौन कहेंगे? दैट इज दोज आर इलेक्ट्रॉन रिच, दोज आर इलेक्ट्रॉन रिच, कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसे? फॉर एग्जांपल जैसा NH3 हो गया, NH3, या फिर H2O, या फिर ROR। तो यहाँ पर नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे अपन तो 2, 5, और बॉन्डिंग जब फॉर्म करेगा तो क्या आ जाएगा? इन फॉर्म में 3 कोवेलेंट बॉन्ड विद द 3 नाइट्रोजन एटम, एंड दिस 2 इलेक्ट्रॉन पेयर remain as it is. 2 electrons, 1 lone pair of electron present on a nitrogen atom. समझ में आ गया? So this lone pair of electron donated by nitrogen to the electron deficient. Clear? वैसे यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 आएंगे इलेक्ट्रॉन पेयर, या फिर H2S लेते हैं, सल्फर कंटेंट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, and hence they have a tendency to donate the electron pair. समझ में आ गया? So these are the electron rich molecule have a tendency to donate the electron called a nucleophiles. इसको क्या बोलेंगे अपन? न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ गया? तो ये हो गया अबाउट द इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स। क्लियर? अब यहाँ पर अपन ने दोनों के लिए लिखा है, दैट इज, तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ध्यान में रखने का। जैसा अपन ने लेविस एसिड की कंपैरिजन किया है इलेक्ट्रोफाइल के साथ में, लेविस एसिड की कंपैरिजन किया है इलेक्ट्रोफाइल्स में। लेविस एसिड दे हैव ए टेंडेंसी टू गेस द इलेक्ट्रॉन पेयर, so these are the electron pair acceptor, these are also electron pair acceptor, ये भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। समझ में आ गया? लेकिन अगर समझो अपन ने CH3 डॉट ले गए, CH3 डॉट, तो इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑक्टेट इट कंटेन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या चाहिए? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लियर? तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा सिंगल, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इलेक्ट्रोफाइल्स। इसको क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रोफाइल्स। इसको लेविस एसिड नहीं बोलेंगे। क्लियर? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ख्याल में रखने का, ऑल the Lewis acids are electrophiles. All the Lewis acids are electrophiles, but all the electrophiles are not Lewis acid. All the electrophiles are not Lewis acid. This is the important difference between the Lewis acid और इलेक्ट्रोफाइल में। समझ में आ गया? अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा लिया अपन ने लेविस बेस। लेविस बेस के साथ में कंपेयर किया अपन ने न्यूक्लियोफाइल्स। लेविस बेस के साथ में अपन ने कंपेयर किया न्यूक्लियोफाइल्स। क्लियर? अब लेविस बेस का मतलब दे हैव ए टेंडेंसी, दीज आर द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, दीज आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और यहां पर भी लिखा अपन ने दीज आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। लेकिन ख्याल में रखने का, द न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू द H पॉजिटिव आयन, देन इट इज कॉल्ड ए लेविस बेस। इसको क्या बोलेंगे अपन? लेविस बेस। ख्याल में रखने का कि लेविस बेस ऑलवेज डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द H पॉजिटिव को। क्लियर? न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल अगर लेंगे समझो अपन ने बी लेंगे, समझो इट कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लेविस बेस ऑलवेज डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द H पॉजिटिव आयन, दैट इज कॉल्ड ए लेविस बेस। समझ में आ गया? और ये रिएक्शन जो है, दिस रिएक्शन इज थर्मोडायनामिकली स्टेबल, दिस रिएक्शन इज थर्मोडायनामिकली स्टेबल। क्लियर?
तो यहाँ पर डेल्टा जी देखा तो निगेटिव आएगा, बहुत ज्यादा निगेटिव आएगा, इसलिए रिएक्शन स्टेबल है। अब यहाँ पर अपन न्यूक्लियोफाइल लेंगे। न्यूक्लियोफाइल contain lone pair of electron, it donate the lone pair of electron, that is the any electrophile, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल को ये डोनेट करेगा, क्लियर, एक्सेप्ट H पॉजिटिव के साथ में नहीं होगा। एंड दिस रिएक्शन इज काइनेटिकली स्टेबल, दिस रिएक्शन इज काइनेटिकली स्टेबल, यानी यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। द न्यूक्लियोफाइल फास्टली डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू द इलेक्ट्रोफाइल्स, क्लियर, ख्याल में रखने का। तो लेविस बेसिस डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द H पॉजिटिव आयन, न्यूक्लियोफाइल donate the lone pair of electron to the electrophilic reagent. This reaction is thermodynamically explained, clear, and delta G इसका निगेटिव रहेगा, बहुत ज्यादा निगेटिव होने की वजह से ये भी स्पॉन्टेनियस होंगी और ये भी रिएक्शन फास्ट होगी, तो इट्स रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्लेन काइनेटिकली, क्लियर, केमिकल काइनेटिक्स में देख रहा है, क्लियर। तो ये होगा अबाउट द इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स, क्लियर।